Hello student, in our previous video we will discuss about how British East India Company became main power of India. Now in this video we will discuss about setting up a new administration by British East India Company in India. In this map you can see area that under the British rule in 1797. In brown color area is under British rule. This is a picture of 1840. You can see nearby 50% area of India under British rule. And this is the picture of 1857. More than 80% area of India is under British rule in 1857. Setting up a new administration. Warren Hastings played a significant role in the expansion of company power. British territories were divided into three presidencies: Bengal, Madras and Bombay. Each were ruled by a governor. Governor General was the supreme head of administration. Warren Hastings was the first Governor General who introduced several administration reform in India. कि ब्रिटिश पावर था इंडिया में, अब क्या हो गया, डे बाई डे वो एक्सपेंड होता जा रहा था, तो इतने बड़े किंगडम को चलाना इजी नहीं था. सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइड इट्स प्रेसिडेंसी या डिवाइड इट्स पावर इनटू डिफरेंट पार्ट, कि उसने पूरे इंडिया को 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड कर दिया था: बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. और उनका जो रूलर था वो था गवर्नर, एंड गवर्नर जनरल इज द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. And Warren Hastings was the first Governor General of Administration of India, and he started different reform policy in India. A new system of justice were established in 1772 in India. Each district have 2 courts. First is criminal court, that is known as Faujdari Adalat. Second is civil court, that is known as Diwani Adalat. Civil court work under European district collector and criminal court work under a Qazi and a Mufti, but in supervision of the collector. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established in Kolkata. Means कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया कि जो भी जितने भी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे, 2 कोर्ट होंगे, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट. तो सिविल कोर्ट होगा, उसका जो हेड होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होगा, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो ही बनेंगे. और जो क्रिमिनल कोर्ट था उसका जो हेड होगा वो होगा काजी और मुफ्ती, यानी कि जो इंडियन ब्राह्मण या उस टाइम जो भी लोग जिनकी बातें मानते थे वो इनके हेड होंगे. इन 1773 फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया built. Next is the company army. The power of the colonial administration is set on its military strength. The Mughal army were divided into 2 parts. Cavalry means savar, trained soldier on horseback. Second is infantry, here you can say pedal soldier. The cavalry dominated the army and infantry did not play a major role. लोकल जमींदार सप्लाई द पैदल सोल्जर टू द मुगल एम्पायर. कि जो कंपनी आर्मी थी वो मुगल आर्मी से पूरी तरह डिफरेंट थी. कि मुगल आर्मी में जो भी सोल्जर थे वो 2 टाइप्स के थे. फर्स्ट थे कैवलरी, ये क्या होते थे, ट्रेन सोल्जर, और ये किस पे से फाइट करते थे, और के ऊपर बैठ के ये चलते थे. सेकंड थे जो पैदल सोल्जर थे, उनको क्या कहते थे, इन्फेंट्री कहते थे. कैवलरी थे या जो भी सवार थे वो क्या होते थे, आर्मी की मेन पावर होते थे, या वही आर्मी को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे. जो मुगल एम्परर थे वो परमानेंट आर्मी नहीं रखते थे. जब उनको नीड होती थी तो लोकल जमींदार क्या करते थे, उनको पैदल सोल्जर को वो सप्लाई करते थे. इन द 18th century, Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their army. The East India Company adopted the same method when it began
requirement for its own spy army. The cavalry requirement of the company's army declined due to technology change from the 1820. The soldier of the company's army had to keep pace with changing military requirement, and its infantry regiment now became more important. कि अभी क्या हुआ कि जब मुगल एम्परर जो से प्रोसेस यूज कर रहे थे आर्मी रखने का, ब्रिटिश ने भी स्टार्टिंग में क्या किया वो ही उन्होंने फॉलो किया जब अपनी उन्होंने स्पाई आर्मी रखी. बट ये सिचुएशन आफ्टर 1820 चेंज हो गया, क्योंकि अब जो भी ब्रिटिश आर्मी थी डे बाई डे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही थी, तो उसके साथ उन्होंने की आर्मी भी क्या थी डे बाई डे चेंज होती जा रही थी. इट मीन्स कि नाउ दे स्टार्ट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन, लाइक कि अब वो क्या जैसे राइफल वगैरह को वो यूज करने लगे. ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप a uniform military culture in the early 19th century. This create problems since caste and community feeling were ignored in building a force of professional soldier. कि जब ब्रिटिश ने क्या किया आर्मी रखना स्टार्ट कर दिया, तो उसने क्या किया सबके साथ क्या किया कि एक कॉमन यूनिफॉर्म सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि आप सबको क्या होगा एक ही यूनिफॉर्म पहनना होगा. तो इसकी वजह से जो इंडियन सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे उनको एक प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि जो आर्मी थी उसमें क्या था डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट कास्ट से सोल्जर आ रहे थे. तो अभी सभी सेम टाइप्स की जो यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो जो अपर कास्ट के सोल्जर थे उनको लग रहा था कि जो लोअर कास्ट के सोल्जर हैं वो उनके इक्वल कैसे हो रहे हैं. तो इसकी वजह से धीरे धीरे जो उसके स्पाई थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनमें एक दूसरे से लेके रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, और वो डे बाय डे क्या हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने लगे. एंड लास्ट में कंक्लूजन, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनी पावर. The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process. Means कि इसका लास्ट का चैप्टर का कंक्लूजन यही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्टार्टिंग में एज ए ट्रेडर आई थी. उसका मेन एम स्टार्टिंग में इंडिया में यही था कि बाई गुड्स ऑन लो प्राइस एंड सेल देम इन यूरोपियन कंट्री ऑन हाई प्राइस. बट जब उन्होंने यहाँ पे आके देखा कि इंडिया में रिसोर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो इजीली उनका यूज कर सकते हैं, तो जब स्टार्टिंग में वो यहाँ एज ए ट्रेडर आए, तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के रेवेन्यू को या जो भी रिसोर्स थे उनको यूज करना स्टार्ट किया. और लास्ट में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जब वो यहाँ पहले गुड्स परचेज करने के लिए जो उनको करेंसी चाहिए थी वो ब्रिटेन से लेके आते थे. लास्ट में उन्होंने क्या किया कि वो यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, यानी कि जो भी वो गुड्स यहाँ परचेज करते थे वो इंडिया के ही मनी से उसको यूज करने लगे, उनको परचेज करने लगे. और लास्ट में वो क्या हुआ कि वो इंडिया की मेन पावर बन गए, यानी कि इंडिया का जो मोस्टली टेरिटरी या मोस्टली जो लैंड पार्ट था वो किसके अंदर आ गया ब्रिटिश पावर के अंदर आ गया था. थैंक यू. नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. कहाँ दे रहे